Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that yesterday we have started our syllabus of internal assignment B2. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you worksheet 2. So, like always, before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 28 November 2020. With this, you will mention online classwork in your copies, and with this, you will mention lesson 7B in your copies, which is a poem, and the topic of the poem is Dad and the Cat and the Tree. The poet of the poem is Kit Wright. So, as you all have seen that yesterday I have provided you a YouTube link through which you all have understood the poem. I have explained the poem thoroughly in that video. So, I hope you all have seen that video and you all have understood the poem. With this, I have also provided another YouTube link in which I have explained you word meanings, make sentences and one exercise related to the poem only. In yesterday's worksheet, we have covered all these things, and in today's video, I will explain you the explanation of the poem and some question answers. So the first heading is explain these lines with reference to context. कुछ लाइन्स हैं जिनको आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना है. द लाइन्स आर दिस मॉर्निंग टू फ्लावर बेड. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइन्स which I have to explain. This morning, a cat got stuck in a tree. Dad said, right, just leave it to me. The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. Fall, scoffed Dad, a climber like me. Child's play this is. You wait and see. He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. So these are the lines which I will explain you when we will do the explanation of these lines. So let's see. So first of all, we'll start with the reference. In reference, we tell that what is the name of the poem and who is the poet of the poem. So let's see the reference. These lines are extracted from the poem Dad and the Cat and the Tree, composed by Kit Wright. सो ये जो लाइन्स हैं, जो पंक्तियां हैं, वो कौन सी पोएम से ली गई हैं? डैड एंड द कैट एंड द ट्री पोएम से ली गई हैं, जो कि कंपोज की गई है किट राइट के द्वारा. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट. इन हिंदी वी से प्रसंग. इन कॉन्टेक्स्ट वी टेल दैट व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द लाइन्स एंड व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन एंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन द पोएम. कॉन्टेक्स्ट में हम बताते हैं कि कविता का भाव क्या है और जो पंक्तियां हैं जिनको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, उनमें क्या बताया जा रहा है. इन शॉर्ट हम एक उसका ब्रीफिंग देते हैं. सो लेट्स सी. इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम अबाउट द पोएट्स डैड एंड द कैट हु गॉट स्टक ऑन द ट्री. ये एक मजाकिया किस्म की कविता है जो पोएट के डैड के बारे में है, एक कैट के बारे में है जो कि पेड़ के ऊपर फंस जाती है. इन दीज लाइन्स द पोएट इज टेलिंग अबाउट हाउ हिज डैड इज ट्राइंग टू ब्रिंग द कैट डाउन. सो इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके डैड जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो कैट को नीचे वापस लेकर आए पेड़ पर से. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स. The poet says that one morning a cat got stuck on the tree of a garden. जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि एक सुबह क्या होता है, एक बिल्ली जो होती है वो हमारे बगीचे के एक पेड़ पर बहुत ऊंचा चढ़ जाती है. बट इट कुड नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प. लेकिन बिना किसी की मदद के अब वो नीचे नहीं आ सकती. माई डैड टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्क्यू द कैट बट माई मॉम वॉज वरीड अबाउट डैड. मेरे पिताजी जो हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं कि वो रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, कि वो उस कैट को बचाकर ऊपर से नीचे लेकर आएंगे. बट लेकिन जो मेरी मॉम होती हैं वो वरीड होती हैं मेरे डैड के लिए. सो इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अबाउट हिज डैड. जो कवि है वो अपने डैड के बारे में बता रहे हैं. सो कवि के डैड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोएट के डैड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो कैट को रेस्क्यू करके वापस नीचे लेकर आएंगे. बट उनकी जो मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपने मतलब अपने हस्बैंड को लेकर, पोएट के डैड को लेकर. शी वार्नड हिम बाय सेइंग डोंट फॉल बिकॉज द ट्री ऑन विच द कैट गॉट स्टक वॉज अनस्टेडी एंड टॉल. सो जो पोएट की मदर है वो वॉर्न करती हैं पोएट के डैड को कि डोंट फॉल, गिर मत जाइएगा. बिकॉज द ट्री ऑन विच द कैट गॉट स्टक वॉज अनस्टेडी एंड टॉल. क्योंकि जिस पेड़ के ऊपर बिल्ली फंस जाती है वो पेड़ बहुत ज़्यादा लंबा होता है और अनस्टेडी मीन्स हिलने डुलने वाला होता है. माई फादर स्कॉफ्ड एंड सैड अ क्लाइंबर लाइक मी कांट फॉल, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. सो मेरे पिताजी, पोएट इज सेइंग कि मेरे पिताजी जो है वो मजाक उड़ाने वाली हंसी में हंसते हैं, कहते हैं अ क्लाइंबर लाइक मी कांट फॉल. मेरे जैसा जो क्लाइंबर है जो बहुत आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाता है वो नहीं गिर सकता. इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. ये मेरे लिए बच्चों का
खेल है, मतलब इतना आसान है कि जैसे बच्चे खेल खेलते हैं. He took out the ladder from the garden's shed and set it down from the tree. जो पोएट के डैड हैं वो गार्डन के शेड से एक सीढ़ी निकालते हैं और उसे पेड़ से सटाकर खड़ा कर देते हैं. बट द ट्री वॉज वॉबली, हिलने डुलने वाला पेड़ था. बट वेन ही क्लाइम्ड इट स्लिप्ड एंड डैड फेल डाउन इन द फ्लावर्स बेड. लेकिन जब डैड उसके ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर तो वो स्लिप कर जाती है और डैड जो है वो फूलों की क्यारियों में आकर नीचे गिर जाते हैं. So it was the explanation of the lines which I have read in the starting. I hope the lines are clear to all of you. You all have understood the explanation of the lines. Now let's see the question answers. The first question is, why was Dad sure he wouldn't fall? Dad इतने sure क्यों थे कि वो नहीं गिरेंगे पेड़ पर से? So the answer is, Dad was sure he wouldn't fall because he was a climber and he thought it was a child's play for him to climb on a tree. डैड बहुत ज़्यादा श्योर थे कि वो पेड़ पर से नहीं गिरेंगे बिकॉज वो एक क्लाइंबर थे, बहुत आसानी से जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं. एंड ही थॉट, वो ऐसा सोचते थे कि ये उनके लिए एक बच्चों का खेल है पेड़ के ऊपर चढ़ना. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? कौन सी ऐसी फ्रेज है पोएम में जो डैड के आत्मविश्वास को एक्सप्रेस कर रही है, दैट ही कैन ब्रिंग द कैट डाउन? सो द आंसर इज, अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह क्लाइंबर, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, मेरे लिए ये बच्चों का खेल है. सो दीज फ्रेजेस एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट. ये जो फ्रेजेस हैं वो डैड के आत्मविश्वास को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. डिस्क्राइब करना है आपको कि प्लान ए क्या था पोएट के डैड का और उसके नतीजे क्या निकले. So the answer is, plan A was to use the ladder to bring down the cat from the tree, but it slipped and Dad fell in the flower bed. प्लान ए ये था कि लैडर का यूज़ किया जाएगा कैट को ट्री से नीचे लाने के लिए, लेकिन जो लैडर होती है वो स्लिप कर जाती है और डैड जो है वो फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारियों में गिर जाते हैं. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स. सम क्वेश्चन आंसर्स वील डू इन द नेक्स्ट worksheet. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.